And we are live on Facebook. Hello, welcome to the last and final day of Breast is Best Summit of Baby Chakra. And today's session was supposed to happen 2 days ago. Unfortunately, because of the Mumbai rains, which was not rains, more like storm and floods, it was pretty unfortunate. And Mr. Nilendu was in a blackout for 20 hours. And joining us today is our very special guest, Mr. Kumar Nilendu. He is from the CRY organization. He's the general manager, program head for the West region operations of CRY. And before we dive into this topic and more introductions, let me reintroduce myself for the 7th time this week. I am Dr. Farah. I am a general physician in Narayan Hrudayalaya, Bangalore. I am author of the book Newborns and New Moms, and you can buy it online on Amazon. Prime चल रहा है, Prime का sale चल रहा है, खरीद लो, 70 रुपए का discount चल रहा है. Buy the book now. And so, sir, let me speak a few words about you. As I said, he's the head of operations in the West, regional head, West Zone. And his wide-ranging experience spans across working with rights of children, women, tribal communities, urban issues related to development. He comes with demonstrated history of working in non-profit organization management industry. Mr. Kumar Nilendu also holds a postgraduate diploma in rural development focused in social sciences and management from Xavier Institute of Social Service. So nice to have you here, Mr. Kumar Nilendu. Welcome to Baby Chakra. Thank you, Dr. Farah. Nice to be here. Thank you so much. तो जरा बताइए आप breast feeding में और first tell me what is your background actually. Let's start with that. I'm sure our audience is interested. What is this program that you have held? When was this, and what is how is this so special? I am associated with CRY, I think, for the last now 14 and a half years. Before that, I was working with another international organization, which was working on developmental issues in around 125 countries, headquartered in US. And before that, again, I was working with an organization which was working in basically in the Southeast Asian countries on small and marginal farmers. So right now, my career span in terms of the time I have spent is 22 years in this sector. And across that, I have worked in around 14 states of the country, which includes some of the most difficult, states to work on, like Jammu and Kashmir, northeastern region, and central, tribal regions of India, where different kind of problems you see. So that gave me a lots of learning, and I think continuously you learn, and you have to keep your learning hats on always, and that is what I try to do. And some of those learnings I will be able to share today with you all. And आपके जो पीछे है ये कौन सा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के साथ? छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, आपको पता होगा, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है. वहाँ पे हम लोग के बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स बच्चों के लिए चलते हैं. तो वहाँ पे साल में हम लोग एक बार बाल मेलवा करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग गांव से जो ट्राइबल इलाके हैं वहां से बच्चों को बुलाते हैं और उनके जो टैलेंट है उनको वहां पे दिखाने का मौका देते हैं. तो ये एक ऐसा ही प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम का 2 मकसद होता है. एक तो बच्चों के साथ, और दूसरा हम लोग छोटा मोटा स्टडीज करते रहते हैं. आंगनवाड़ी कैसी चल रही है, पब्लिक हेल्थ सेंटर या A&M सर्विसेज कैसा चल रहा है, और उसको लेकर के अगर कुछ गैप्स है तो वो स्टडी को हम लोग इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी इसमें करके, और मिनिस्टर को या जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बुलाते हैं. तो ये उस तरह का एक प्रोग्राम था, और उसकी ये तस्वीरें हैं जो मेरी बैकग्राउंड में आपको दिख रही हैं. ये बच्चे हैं अपने ट्राइबल हेड गियर्स में, ट्राइबल ड्रेस में है. बहुत खूबसूरत फोटो है ये उसी समय का. तो बिफोर वी मूव ऑन टू ब्रेस्ट इज बेस्ट समिट, मैं ये कहना चाहूँगी सारे दर्शकों से कि वी हैव गिवन द लिंक बिलो. दिस इज अ फंड रेजर इवेंट. हमारे पूरे BIB समिट का दिस इज ओनली फंड रेजर. प्लीज बी जेनरस, कंट्रीब्यूट कीजिए CRY इंडिया फाउंडेशन को. ही हैज टोल्ड यू, वी आर जस्ट बिगिनिंग टू टॉक अबाउट द अमेजिंग वर्क CRY करती है. It's how many years old this foundation? 40 years old, is it? 40 years old. Yeah, it's a 40-year-old organization. In fact, this is the first NGO that I heard of as a school student. School mein jab thi, this is the first CRY India Foundation, and I can't believe that
someday I would get to speak to someone from CRY and, maybe in some little way of mine help in any contribution. So guys, please be generous. The link is below. Please be generous, contribute. It will all go to a good cause. It's a very trustworthy source. So let's contribute to CRY India Foundation right now. And moving on, can you tell us the proceeds will go where? Who will the proceeds be helping? The proceeds will be helping. We are currently CRY करीब करीब 14 राज्यों में काम कर रही है देश के फिलहाल, और वहाँ पे हमारे ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स चलते हैं। तो ये जो प्रोसीड्स है ये उनकी तरफ जाएगा, उनमें हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जाएगा। Okay, we'll speak more about these people also in this conversation. और let's start कि अभी आप हमें बता दीजिए कि ये जो अंडर प्रिविलेज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सर, जरा मुझे सिखा देंगे अंडर प्रिविलेज को? वंचित समुदाय बोला जाता है इनको। क्या 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 कहा जाता है? पिछड़े हुए और वंचित समुदाय। वंचित समुदाय, ठीक है। इनके लिए क्या सिनेरियो क्या चल रहा है आजकल? क्या तस्वीर है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसा चल रहा है अंडर प्रिविलेज में? बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव सिटी एंड अर्बन का है, बिकॉज मैं इनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। आप यू टच द लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, सो प्लीज टेल अस कि वहाँ पे सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन देखिए ऐसा है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं, और सभी कम्युनिटीज एक जैसे नहीं है। कुछ एरियाज में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गोंड आदिवासी मिलेंगे, कहीं पे आपको कोलाम आदिवासी मिलेंगे, कहीं पे आपको उड़ाऊ मिलेंगे, कहीं पे मुंडा मिलेंगे, ये सब के, और कहीं पे आपको प्रिमिटिव ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं पीटीजीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, वो मिलते हैं। कहीं पे बैकवर्ड कम्युनिटीज, एससी कम्युनिटीज मिलती हैं। सबके थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं अपने कस्टम्स, जिसको हम बोलते हैं उनके वो जो सदियों से जिसको फॉलो करते आ रहे हैं। समस्या ये है ब्रेस्ट फीडिंग में कि अगर ये मान के हम चलते हैं, कहीं भी ये मन में सोच है कि कोई भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती है, तो ये तो कतई गलत होगा। मैं इसको एकदम सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। वो माँ क्यों नहीं करा पाती है जो कठिन परिस्थितियों में, हमें ये समझने की जरूरत है, और CRY ये बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करते हैं, और तब उस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि माँ चाहती है लेकिन लोग बोलते हैं कि माँ को दूध नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। माँ को दूध तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से आएगा, लेकिन दूध पिलाने के लिए वो ममता का भाव, वो थोड़ा सा शांति का जगह है, जिससे कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो एक फीडिंग का होता है वो शुरू होने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो माँ अभी 3 दिन पहले तक प्रेग्नेंट थी, 3 दिन पहले डिलीवरी हुआ है, और हमने देखा है कि वो फिर से काम में लग गई है, जंगल में जा रही है बच्चे को पीठ पे डाल करके। तो ये सब कंडीशंस, न्यूबॉर्न बच्चे को पीठ पे डाल के, एकदम जस्ट पैदाइश में बच्चे 3-4 दिन के बच्चे को भी ले जाती हैं वो। तो और उनको खाने की समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो खाएंगे क्या, और उनका परिवार क्या खाएगा। तो इस परिस्थिति में हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि माँ क्यों नहीं करा रही है, माँ के अलावा जो उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें भी जब तक थोड़ा थोड़ा बदलाव ना होगा, उनके परिवार के लोगों को अगर नहीं समझाने की कोशिश की जाएगी, तब तक ये उतना आसान नहीं होता है। माँ चाह के भी ज्यादा नहीं कर पाती है, क्योंकि वो परेशान है। तो ये तो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ना, कि जाके आप अगर अपने किसी के घर में कहेंगे कि आप उसको काम पे भेज रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल हस्बैंड अगर अब्यूजिव है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, मे बी दे आर डेली वेज वर्कर्स, मजबूरियां सबकी बहुत होती है, बट उनको जाके इट्स सच अ सेंसिटिव टॉपिक, आप कैसे छेड़ते हैं? अगर आप जाके सेंसिटाइज करेंगे घर वालों को कि प्लीज माँ को जरा रेस्ट दीजिए, एंड उसको आराम दीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए, उसको अच्छा खाना दीजिए, हम तो बोल सकते हैं, पर हाउ डू यू कम्युनिकेट विदाउट ऑफेंडिंग देम? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोग्रामिंग का तरीका लगाया जाता है, जिसमें सबसे पहला काम होता है कि सिचुएशन एनालिसिस बोलते हैं उसको, परिस्थिति का गहराई से आकलन, कि वहां पे कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। और उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। उसमें परिवार में जो मान लो एक उनकी सास है, या उनकी उस घर में कोई सीनियर ओल्ड एज दादी अम्मा है, उसका एक प्रभाव होगा। उस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, उसका एक प्रभाव होगा। उस परिवार में कितने बच्चे हैं और उस माँ को कितने बच्चों का ध्यान रखना है, उसका प्रभाव होगा। और साथ में वहाँ पे उनके खान पान की क्या परिस्थिति है, न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, वो भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये सब कह देना है। ये प्रोग्राम कम से कम मिनिमम हम लोगों ने देखा है कि 3 साल तो सोच के बदलाव आने में लगता ही है शुरुआती तौर पे।
और वो डीपली आगे जाता है। तो हम लोग ये थ्रू दिस प्रोसेस पूरा कंस्टेंटली उनके साथ अलग अलग स्टेज पे काम करते हैं। तो पहला समझना। ये माँ का दूध वगैरह अगर कोई आदमी जाके उनको एजुकेट करने की कोशिश करे, क्या वो लोग रिसेप्टिव है कि मतलब कोई औरत ही आके समझाना उनको, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने भी उठाया है कि क्या कोई फील्ड वर्कर जो क्राई की तरफ से जाता है वो मेल है या फीमेल है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। कोई हम्म। भी मेल जा करके इस सेंसिटिव टॉपिक पे बात नहीं कर सकता है। तो हम लोग हम्म। उसके अलग तरह के निकालते हैं, जो हमारी फीमेल वर्कर्स होती हैं उनके साथ काम होता है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आंगनवाड़ी सेविका, वो सारी महिलाएं होती हैं। और एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सेज एंड yes। मिडवाइफ, उनके साथ हमारी संस्था काम करती है, उनको भी हम ट्रेन करते हैं और साथ में हमारे फील्ड वर्कर्स भी जाते हैं। तब जाकर के ये धीरे धीरे ये बातचीत शुरू होती है। पहले उनसे पहचान बढ़ाना होता है, फिर उनका भरोसा जब जग जाता है तो कभी कभी महिलाओं का ग्रुप बना दिया जाता है कि आपस में बैठ के बातचीत स्टार्ट करते हैं। तब वो शायद धीरे धीरे उनकी समस्याएं निकल के आती हैं। उन समस्याओं को आकलन करके उसका सॉल्यूशन देने की प्रक्रिया तब शुरू होती है। इस तरह से ये काम आगे बढ़ता है। वेरी फैंटास्टिक। वही, और वो लोग का लोकल कनेक्ट भी रहता है क्योंकि वो आंगनवाड़ी वर्कर जो है, वो एग्जैक्ट। आशा वर्कर है या फिर वो एएनएम है, उनका वो लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट वो आपको कोई बुक से नहीं सिखाएगी। उनका उठना बैठना, उनकी जो छोटे छोटे तौर तरीके जिससे वो ऑफेंड हो सकते हैं, कि मान लो कि कोई छोटी सी बात कह दे कि चलो खाना खा लेते हैं, तभी वो बैठे हैं चलो खाना खा लेते हैं, घर के बड़े बुरा मान जाएंगे कि आदमियों से पहले खाने खाने का कैसी बात कर दी उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीज वहाँ के लोकल वर्कर्स, तो मैं दर्शकों को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि एट एवरी कम्युनिटी लेवल, से इट इज एट द विलेज लेवल, एट 4 विलेजेस का 5 विलेजेस का मिला के डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी लेवल पे है, देर आर कम्युनिटी वर्कर्स। एंड उनको डिपेंडिंग ऑन देयर रोल, दे आर आइदर द आंगनवाड़ी वर्कर्स और दे आर द आशा वर्कर्स और दे आर द एएनएम। तो दीज पीपल हैव अ कनेक्ट विथ द लोकेलिटीज। तो उनका चाल चलन, उनके कस्टम्स ये लोग सब समझते हैं। एंड व्हाट क्राई डज इज, क्राई इन लोगों को एजुकेट करता है, द एजुकेटर्स को क्राई एजुकेट करता है, सेंसिटाइज करता है कि ये हमको लेना है, दिस कॉज वी नीड टू टेक फर्दर। एंड दैट्स हाउ क्राई वर्क्स। बिकॉज अगर आप इंडिया में देखेंगे, कोई भी जगह देखेंगे, इतना सेंसिटिव टॉपिक माँ का दूध, कोई आदमी अगर आके बात करे, इट विल बी डिफिकल्ट। सो क्राई इज टेकिंग अ वेरी beautiful approach of working in collaboration with the community level workers, educating them, sensitizing them about the topic, and then they take it further. और ये टॉपिक ऐसे नहीं कि जाके किसी के हलक में डाल दें, it's a very sensitive topic and CRY is doing a fabulous job. So tell us कि what are the best practices that you guys do? बेस्ट प्रैक्टिसेस के पहले मैं कुछ और चीजों जी, पे बात yes कर, please. उस पे आते हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे उनके हम लोग उसको केपी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस। Yes. अभी क्या है कि वो केपी का भी बहुत असर होता है कि किस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को देखी जा रही है। बहुत कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को बच्चों के साथ मेन घर से अलग रखा जाता है। उसमें सोच Yeah. ये है कि अभी इनमें अशुद्धता है और उनको बहुत ही मिनिमम खाना दिया जाता है। और ये प्रक्रिया जो है बहुत हजार साल से चली आ रही होगी। जब हमें ये समझ में आया तो अचानक से उसमें बदलाव होगा नहीं। धीरे धीरे समुदाय के लीडर्स के साथ उनसे बात करके कि इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, उस तरह से कितना जगह तो ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रम की जो बात करते हैं, कोलेस्ट्रम जो जी। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पहला दूध माँ का, उसको पिलाने और ना पिलाने को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं बहुत सारे समुदाय में। बहुत लोग कहते हैं कि इसको पीने के बाद बच्चा बीमार हो जाएगा, जबकि एक्चुअली उसका पर्पस कुछ और है। तो वो उनको पीने नहीं दिया जाता है। तो फिर उसको जब हम लोग काम करते हैं तो धीरे धीरे बदलाव, अभी हमें 2.5 साल लगे हैं ये बदलाव करने में बहुत जगह पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे देखो। तो जो सोच में बदलाव है उसके वजह से बिहेवियर में बदलाव होता है। दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उस पे जो घर में जो बुजुर्ग हैं उनका बहुत बड़ा उस पर प्रभाव होता है। तो हम लोगों ने दादी अम्मा के साथ साथ सास जो होती है मदर इन लॉ, उनके साथ भी काम शुरू किया कि आप जब खुद बहू थे तो आपने क्या देखा है, क्या झेला है, और आज जब आप आपकी बहू है तो आप ये परिवर्तन कर सकते हो। धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस जगाना। कभी कभी वो मानने को तैयार नहीं होती हैं, 6-6 महीना तक उनके पीछे लगे रहना, और फिर बाद में उनको समझ में आता है। तो जहां जहां ये कंबाइंड इफेक्ट हुआ है उसका असर हमें देखने को मिल रहा
इनफैक्ट सर आप जो कह रहे हैं ये अंडर प्रिविलेज में है, ये एक्चुअली हमारे इंडियन माइंडसेट में ही है. द प्रॉब्लम इज ये मेरी बुक का जो लिखना चालू हुआ था एंड मैंने जैसे मेरे पेशेंट से बात करने लगी थी, दिस इनहेरिटेंस ऑफ हेट मैंने इसको टाइटल दिया था. यू नो द मदर इन लॉ इज ट्रीटेड नॉट वेल व्हेन शी वाज अ बहू. और वो कि घर का कोई सदस्य नहीं जिसको बहू वाला ट्रीटमेंट, बहू और भाभी वाला ट्रीटमेंट इंडिया में कहीं मिलेगा. दामाद ले लो, कजिन्स ले लो, नंदोई ले लो, किसी को भी ले लो, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, वो बेसिक कर्टसी. एंड हमारे माइंडसेट में इनग्रेन है कि बहू है, भाभी है, थोड़ा नाक चढ़ा के ही देखना है उसको. एंड ये जो इनहेरिटेंस ऑफ हेट है, इवन दो वो सास निकलना चाहती है उसमें से, वो नहीं निकल पाती है. एंड एक्चुअली my book Newborns and Newborns, sir, you also have a copy. I would really love it if you would read the breastfeeding chapter. You'll understand what I'm talking about. उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया कि ये सिर्फ इंडियन सिनेरियो, सिर्फ अंडर प्रिविलेज में नहीं है, ये हमारे सिटी गर्ल्स में. हमको ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं एंड जस्ट डिलीवरी के बाद जॉइंट फैमिली बन जाता है फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. कोई ना कोई आके ख्याल रखता है एंड दैट टाइम वी कैन नॉट डील विद वो माइक्रो एग्रेशन जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा ताना पड़ जाना, थोड़ा सा इरिटेशन होना. एंड दैट इज, दिस बुक इज आइडियली, द बुक, माय बुक न्यूबॉर्न्स एंड न्यूमॉम्स, इट इज आइडियली फॉर इंडियन women, Indian urban girls, not for the underprivileged, but there are a few underprivileged stories. I'll share that with you after you speak. I'll share that in your in the next segment. But ये जो सास का mindset change करना है, that is why I wrote this book, to bridge the gap. एक तो वो देते हैं बहुत valuable information, और हम as city girls who जिनका सारा information इंटरनेट से आ रहा है, हमको बराबर वो जो ज्ञान है, वो जो native intelligence है, जो हमारी माँ, सास, दादी, नानी के पास है, हमारे पास नहीं है, और इंटरनेट उसको निकाल दे रहा है. So it is to give that a chance. तो एक वहां से गैप ब्रिज हो जाता है, where we convince the city girls कि this is good for you with science. Obviously we all need science. बहुत educated ladies है, they need, ऐसा नहीं बोल सकते कि हड्डियों में हवा उतर जाएगी, हम नहीं मानेंगे ये बात. That is such a superstitious and outdated way of speaking about it. और the other thing is I explain कि why is she behaving like that. So it is kind of to bridge the gap, because हमारी mental health पे बहुत टोल लेता है. The conflicting thoughts, हम बोल रहे हैं इंटरनेट कुछ और बोल रहा है, इंटरनेट तो भगवान है. अभी हमको इंटरनेट कुछ बोला तो हम तो उसी को मानते हैं. इंटरनेट ऐसा नहीं बोल रहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं मुझे यही मालिश करवाना है, नहीं ये आउटडेटेड है, ये जरूरी नहीं है खाना, मैं मोटी हो जाऊंगी ये खाने से. द इम्पॉर्टेंट नेटिव नॉलेज जो है, दैट इज गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. एंड दैट्स व्हाट मेड मी रिसर्च why we are doing these and implement them. तो ये अंडर प्रिविलेज का नहीं है, तो पूरे इंडियन माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे हो, यूएस में हो, एनआरआई हो, कोई भी हो. So, sir, coming back to your topic about knowledge, attitude and practices, please आप continue कीजिए. और एक सेगमेंट जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जो हम लोग शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, यहाँ पर भी अंडर प्रिविलेज्ड का बहुत बड़ा तबका रहता है. इनफैक्ट आप मुंबई या दिल्ली या किसी भी बड़े शहर, चेन्नई, बेंगलोर में स्लम्स की हालत देख लें अगर, तो वहाँ जो माँ है, उनके अगर आप एक दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन की बात करेंगे, तो उसमें से जो मेल्स होते हैं वो तो सुबह ही निकल जाते हैं. ज्यादातर वो जिसको बोलते हैं डेली वेज लेबर, या रेड़ी लगाना या रिक्शा चलाना, तो उनका काम शुरू हो जाता है. महिलाएं फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में काम करती हैं. और उस कंडीशन में उनका काम भी 6 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्बन कंडीशंस में सब कोई ऑफिस चले जाते हैं. तो बहुत सारे लोगों को अपने काम जो है 8-9 बजे के अंदर चाहिए, सो दैट दे कैन गो, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग. इन महिलाओं का अगर छोटा बच्चा होगा जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौर में होगा, आप समझ सकते हैं कि वो महिलाओं का क्या होता होगा. और हमें एक शायद मैं अपील भी करूंगा कि अगर हम लोग शहरों में रहते हैं और हमें पता है कि हमारे यहाँ जो काम करने आ रही हैं, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, उसका एक बच्चा है जिसको कि ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, तो प्लीज उनको आप अलाउ करिए लाने के लिए. वो गंदे नहीं होते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं. लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप ये करने देते हैं, तो जब वो अपने छोटे बच्चे को लेके आती है, तो वो बीच बीच में दूध पिला सकती है. और ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा को आप 3 टाइम खाना देंगे, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा नहीं है. उसको बहुत ही फ्रीक्वेंट फीडिंग की जरूरत होती है. तो मेरा अपील भी है कि ये चीज़ों पे आप अपने हिसाब से ध्यान दीजिए. दूसरा एक सेगमेंट है, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स देख लीजिए, वहाँ जो महिलाएं काम करती हैं और उनको लेके कोई सुविधा नहीं होती है, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हैं, बड़े साइट्स पे क्या होना चाहिए, क्रेश होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है. तो
अगर आप कहीं ऐसा देखते हैं उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, हम लोग इस पे भी काम करते हैं, एडवोकेसी बोलते हैं उसको, कि बात करना अलग अलग अधिकारियों से, सरकारी तंत्र से, कि भाई इसको कैसे बेहतर लागू किया जाए। तो ये सर, I'd चीज। like to say something at this point. जो हमने 3 अगस्त को बात की थी मटर्निटी 4 अगस्त को मटर्निटी रिटर्नीज के बारे में, एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन IBM, KPMG, इन्फोसिस, मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। और हम क्या बोल रहे थे तब कि मटर्निटी ब्रेक में वी शुड हैव अ पंपिंग रूम, डोंट एक्सपेक्ट अस कि हम लोग तो बाथरूम जाके पंप करें या बेबी को फीड करें। वही चीज हम यहाँ पे उनके लिए अप्लाई करते हैं। उनको मटर्निटी ब्रेक वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड वी आर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे वर्क, and we are the ones who are responsible for bringing this positive change. तो हमको थोड़ा एम्पैथी, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी से काम लेना पड़ेगा। अगर आपकी मेड है, उसका छोटा बच्चा है, वो दूध पिलाने की उम्र है उसकी, या वो लेकर आती है, लेट्स जस्ट शो सम सिंपैथी, अलाउ हर, उसके बच्चे का हक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपको आपके ऑफिस में रोका गया है कि आप नहीं ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग ब्रेक्स है या फीडिंग ब्रेक्स आप नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे एंड वी कैन मेक श्योर कि बच्चा हेल्दी रहे फॉर्मूला पे भी। बिकॉज हमको बेसिक हाइजीन मालूम है, वो लोग के पास ना बेसिक हाइजीन के उनको मानना मालूम है। उबालना चाहिए, स्टेरिलाइज करना चाहिए बॉटल, अगर वो बॉटल पे डाले भी, और कितना वो लोग बचत के चक्कर में पतला दूध देंगे बच्चे को। जितने आउंसेस डालना चाहिए, जितने स्कूप्स डालना चाहिए एक आउंस में, वो लोग नहीं डालेंगे। एंड बच्चे को डायरियल इलनेसेस हो सकती है, और इसमें बच्चों की डेथ्स भी होती है बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू गो टू द पीडियाट्रिशियन। एंड डायरिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ इन द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो इन्फेंट मोर्टालिटी बोलते हैं। अक्यूट डायरियल डिजीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सो गाइज, लेट्स प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, लेट्स encourage it in small in the underprivileged। अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्थ है, जस्ट द वे वी वांट maternity break, जस्ट द वे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे maternity break में हमारा पे गैप ना हो, they also have that right and they don't have that voice, so we are trying to give them that voice today. Carry on, sir. मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इम्पैथी और सिंपैथी की बात मुझे नहीं लगती, ये बच्चों के अधिकार की बात भी है और माताओं Yes, के अधिकार की बात भी है। तो yes, so इट इज अबाउट राइट्स, सो डोंट, आई विल नॉट ओनली लाइक इट टू मेक अ पर्सनल चॉइस, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम दैट राइट्स एंड एंटाइटलमेंट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ में मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, चीजें आसानी से बदलती नहीं है, और खान पान का भी असर बहुत होता है ब्रेस्ट फीडिंग के एबिलिटी पे। अब क्या होता है कि खाने की समस्या है, अगर फैमिली इनकम कम है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और माँ, और हमारे देश में ये चीज देखा गया है कि आप इसको जो भी चाहे बोल सकते हैं, जेंडर कंस्ट्रक्ट्स बोलिए, या जो बाइसेस हैं, या वट एवर द वे वी आर, महिलाओं को तो गृह लक्ष्मी बोलते जरूर हैं, और महिलाएं इसको बहुत शिद्दत से निभाती हैं। अगर मैं बोलूँ तो शायद खुद ना भी खाएं तो पता ना चलने दे दूसरे को कि मैंने नहीं खाया है, लेकिन इंश्योर करें कि बाकी लोग खा लें। ये उनके साइकी में ये इस तरह से बिहेव करते हैं। और साथ में परिवार वाले भी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने सबको पहले खिलाया और खुद बाद में खाया, और खुद महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको भी ध्यान देते हैं, ये इसको देना भी चाहिए हर एक घर में ध्यान, पहले उनको खाना मिले। और साथ में अगर एक प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि जहाँ भी न्यूट्रिशन का जो क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो हम लोगों ने, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, छोटा कार्यक्रम करते हैं जिसको खाना खजाना बोलते हैं। अभी खाना खजाना में क्या होता है कि लोकली अवेलेबल फूड है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, वो वहाँ पर उपलब्ध है और वो महिलाओं को मिल सकता है। उसको अलग अलग कलर में न्यूट्रिशन क्या है उसके ऊपर उनका एक तरह से उनको डेमो करते हैं, फिर उनके साथ एक प्रोग्राम होता है खाना खाना, जिसमें सबको बोला जाता है कि सब मिल के बनाते हैं, और इस तरह से उसको प्रमोट करते हैं। तो क्या होता है कि जब साथ में आती हैं और बात करती हैं, और उसमें सास भी होती है, दादी भी होती है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही महिला भी होती है, और साथ में यंग गर्ल्स भी होती है, एडोलेसेंट गर्ल्स भी होती हैं। oh nice, एक that's nice. बहुत ही प्रक्रिया बहुत हेल्प करता है लोगों को जोड़ने में। और साथ में न्यूट्रिशन फूड कैसे हो सकता है न्यूट्रिशन बेहतर, इसमें एक छोटा सा प्रयास है। एक और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि गांव में तो ये समस्या नहीं है, किचन गार्डन क्या बन सकता है क्या, अगर आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी है, लेकिन उसमें अगर छोटी जमीन होती है थोड़ी सी, तो हम होती है। फीड दे देते हैं, साथ में उनको और भी जो हेल्प चाहिए वो कर देते हैं कि ठीक है यहाँ पे आप कुछ सब्जियां उगा लीजिए। और साथ में हम लोगों ने ये प्रयास भी अभी किया है कि जितने आंगनवाड़ी हैं जहाँ जगह है, सरकारी तंत्र से बात करके, और साथ में स्कूल्स में भी जो मिड डे मील होता है, कि मिड डे मील की क्वालिटी बेहतर हो सकती है अगर वहाँ पे एक सब्जी की जगह उनको अपनी उगाई हुई दूसरी सब्जी मिल जाए जो वहीं से हो रही है।
ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और लेकिन मैं समझाना चाहूँ कि ये एक दिन में नहीं होता है, ये कुछ क्विक फिक्स नहीं है कि फैक्ट्री है कि इधर से डाला और इधर से प्रोडक्ट निकल गया। डालते रहो, 3 साल तक मेहनत करते रहो, तब जाकर के चीजें में बदलाव आता है, साथ में सब लोग आते हैं। लेकिन जहां भी ये हुआ है, हम लोगों ने 3 किचन गार्डन से शुरुआत की थी एक स्टेट में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा रीजन में। और अभी हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम 170 जगह पे ये चीज फैल गया है। और उसके वजह से लोगों को बेनिफिट हो रहा है, गांव वाले भी हेल्प कर रहे हैं खुद उसको करने में। तो गांव में ये एक सुविधा है। अर्बन एरियाज में हमें दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। अर्बन एरियाज में हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्कीम्स है, साथ में गांव गांव एरियाज में भी देखते हैं, लेकिन वो स्कीम्स का एबिलिटी उनको हो जाए, उनके इम्यूनाइजेशन टाइम पे हो जाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग और इसके साथ लिंक जो चीजें हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं शुरू होती है। हम लोग का ये मानना है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तभी से एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान उनका सारा केयर जरूरत है, और पोस्ट नेटल केयर, ये पूरा साइकिल हम लोग देखते हैं एज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। So you have a tracking program, am I right? सिस्टम है हमारे पास सर आप बता दिए ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में। ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा है कि जहां भी काम हो रहा है वहां पे हम लोगों ने अभी पिछले 1 साल में ऐप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। एक ऐप है जिसके अंदर जीपीएस बेस्ड सिस्टम है कि एक बार महिला अगर कोई प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसका नाम है गांव के लिस्ट में, तो वो वहां रहता है, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है वो अपने आप इस सिस्टम में चला आता है कि प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम में। और फिर वो महिलाओं को, उन महिलाओं को जैसे TT1 TT2 मिलना चाहिए, वो उनको टाइम पे मिला कि नहीं। अगर उनका डिले हुआ तो हमारा सिस्टम वो और कार्यकर्ता उसको देख लेता है और जाकर के फिर ANM से बात करेगा कि भाई इनका लेट हो गया है, क्यों हुआ है लेट। इसके वजह से क्या होता है कि उनका जो मिस करने की प्रक्रिया होती है कि वो मिस कर जाएंगे, वो नहीं होता है। 1-2 दिन डिले के बाद या 1 वीक डिले के बाद वो उनको मिल जाता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, राइट फ्रॉम एडोलेसेंट गर्ल्स टू मदर्स। और वो खाने को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहले इम्यूनाइजेशन को लेके भ्रांतियां थी कि बुखार हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आयरन फोलिक एसिड में, ये बहुत बड़ी भ्रांति थी, होती है। लेकिन उस डर से उनको बाहर कैसे निकाला जाए कि वो उसको लें, ये भी बहुत जरूरी है। एक गांव में हम लोगों ने देखा कि बराबर ले रहे हैं, जा रहे हैं, उनको दिया जा रहा है सिस्टम से, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इवेसिव रिप्लाईज है कि हाँ आप खा रही हैं, हाँ खा रही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर पे बैठ के बातचीत हो रही थी, और हमारे कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि अच्छा आप कहाँ पे रखती हैं अपनी आयरन फोलिक एसिड टैबलेट जो आपको गवर्नमेंट सिस्टम से मिलता है। तो उन्होंने बताया कि वो छत था, झोपड़ी थी, उसके अंदर वो घुसा के रखे थे। तो जब वहां से जाके बोला अच्छा ला के दिखाइए, तो पता चला कि 90 टैबलेट जो उनको 3 डोजेज में दे गए थे उधर के उधर ही पड़े हैं। तो वो बोलते थे खा रहे हैं, लेकिन भ्रांति की वजह से खाते नहीं थे। बाद में समझ में आया कि इस तरह से ट्रैकिंग हुआ, तो वो उसको एक जगह फेंक देती थी। तो जहां पे फेंकती थी वहां का जमीन और वहां का एक पौधा लाल हो गया था, क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड होता है एज ए कॉम्पोनेंट। तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो हम लोग जब डीपली काम करते हैं गांव में, तो इस पे भी हम लोग जाते हैं, और तब समझ में आया कि उनके मन में डर क्या था, वो क्यों ऐसा कर रही थी कि सिस्टम तो दे रहा है लेकिन खा नहीं रही है। तो उनके जो ये छोटे सवाल होते हैं, जो मन में डर होता है, ये भी दूर करना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आपने जब मुझे पहली बार ये स्टोरी बताई थी, आई केप्ट लाफिंग। और ये प्रॉब्लम बहुत देखते हैं, जब वो जो ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम, व्हाई इज इट सक्सेसफुल इन इंडिया इन रिड्यूसिंग द ट्यूबरक्लोसिस रेट, इज कि these workers, the community workers, they help कि make sure कि वो ट्यूबरक्लोसिस की 5 मेडिसिन लेनी होती है। और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड डिफरेंट वो रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं टू इंश्योर कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कहाँ का इन्फेक्शन है, तो 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का हो सकता है। तो कौन लेगा 1 साल के लिए? हम लोग खुद अपनी रेगुलर 1 महीने की कैल्शियम टैबलेट लेना भूल जाते हैं। सो दे व्हाट दे मेक श्योर इज कि आप बस आओ हॉस्पिटल, आप हमारे सामने खाओ, जाओ। That's all they do. So the same thing, आपने जो किस्सा बताया, it's a very beautiful story कि we need to make sure कि जो attitudes है of what cry is doing, the attitudes कि बस जाके मेडिसिन मिला, हाँ मिला, and you realize कि ये underprivileged का, this is for the audience, not you sir, we have to realize कि they don't have the confidence to say कि नहीं हमको नहीं चाहिए। We are very woke जो है ना आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड, we know everything। तो हम अपने डॉक्टर को बोलते नहीं हमको टेस्ट नहीं पसंद है, नहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नहीं पॉटी का कलर ब्लैक हो गया है, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ आयरन। थोड़ा किसी को एसिडिटी होता है, तो कभी हम लोग उसका जो फॉर्मुलेशन है सल्फेट से फ्यूमरेट या सक्सिनेट ऐसा कुछ कर लें आयरन का, सो इट मेक्स अ डिफरेंस। So many people they respond to certain ones, many people they don't respond to certain ones. And I remember from my college days, हम community medicine में जब posting होती थी हमारी गाँव में,
एक चीज जो हम सिंपल सी चीज हम अंडर प्रिविलेज लोगों को बोलते थे कि आप जब खाएं उसके साथ चाय ना लें क्योंकि वो अब्जॉर्प्शन खराब होता है। तो ये कम्युनिटी वर्कर्स का ये जॉब है। दैट इज नॉट समथिंग यू एंड आई कैन डू, दैट इज समथिंग जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। मिस्टर कुमार नीलेंदु है, दे रियलाइज दीज थिंग्स। दैट इज द ब्यूटिफुल जॉब क्राई इज डूइंग. So reminder, this is a fundraiser event. Please click down below. And अगर आप ये recorded stream भी देख रहे हैं, this is not a one time contribution. Whenever you see it, आप इसको 5 दिन बाद भी देखें, आप please contribute कीजिए, दिल खोल के contribute कीजिए. It is going for a very wonderful cause. It is going to Cry India Foundation, very trustworthy source, and it will be, rest assured, this will go to the right people, the deserving people. Because आजकल हमारा सबसे ज़्यादा यही बड़ा डर है. Contribution तो दे देंगे, पैसा बहुत है, but can we trust? Of course we can trust. 40 years of Cry India Foundation. Please contribute to this cause. And if you want to buy my book, it is available. Link is given down below. Prime sale chal raha hai. Dubai. It is a very good book. I have started reading it. Dr. Farah had sent me one. So I have just started. I will go through it, and it is a nice book. I will tell everybody to read. And you can rest assured, CRY is the organization which is a Indian organization formed in 1979. And many things which CRY started today at that point of time was pioneers in this country, including fundraising for serving the underprivileged. Today, it is being done by even organizations like UNICEF and all. But I will tell you, CRY was the pioneer, and it is Indian organization. And luckily, we started with 50 rupees, 7 friends. So, wow. And our you were among the founders? So I was not. Our founder basically was called Mr. Ripan Kapoor. And Mr. Ripan Kapoor was serving with Air India, and he was a flight purser, and he used to go to with flights to different countries. And at that point of time, Dharavi is still supposed to be the largest slum and to land. So from that point of time, he thought of doing something, but he was very, very clear that it should not be a family foundation. So CRY is a public trust registered under Bombay Charitable Public Trust Act, which is one of the most stringent acts in India in terms of compliance. And from there, today we have reached this stage where we have a sister concern in CRY America. We have a small beginning of CRY UK, and that's fantastic. We continue to serve the children of India and women. And we believe in entitlement mode. So it is not about charity. Charity we can do and we can feel happy. But the larger change will only happen when it becomes sustainable, when they receive their dues. So that is how we think, and we have grown over these last 40 years. And we believe that we will continue working for the children's rights and women's rights and for underprivileged, maybe till the time it allows us, and till that time system changes with your support, of course. So Dr. Farah was saying, please contribute. It will help us in continuing our good work and expanding our work. Thank you. So before we sign off, one quick question. अभी का तो pressing topic पिछले 6 महीने से एक ही है, COVID. So could you shed some light कि ये COVID migrant crisis, how has it affected kids and mothers? Greatly affected, because 2-3 things have happened. One, that initially when it stuck, let us start from the cities. So initially nobody can go out, there was panic and everything, and suddenly work had stopped. So daily wage laborers, for example, those who were running autos, those who were taxi drivers, those who were construction workers and living in slums, they didn't have anything to do. They didn't have money coming in, and the relief actually reaching to them took its own sweet time. So their condition was very bad. So the panic set in, and then they thought कि मरना है अगर तो अपने ही मिट्टी में मरना चाहिए, यहाँ हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है. तो then they started migrating back. And I think you can watch any news channel at that point of time, or YouTube, find the situation, how many people were going on the national highways. The most tragic reminder of it is when 9 people were cut down by a train in Maharashtra, because they were walking down from Mumbai, going towards their village beyond Aurangabad, and since they were walking whole day, they were very tired, so they slept on the railway tracks because the trains were not running. But there was a goods train which was supposed to go, and there was no idea. So such tragic scenes across the streets of India
Now another layer has started happening when they returned back their own village. They people were also very fearful, na. Oh God. Here and they were actually taking all the possible precautions, like they were not allowing them to enter the village. They had quarantined them in their own way in the areas outside the village in the schools. Now the third phase of the problem is कि when they are back there is no work. तो वो काम किधर करेंगे अभी, और कैसे काम करेंगे? तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, तो रिलीफ ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में अभी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका काम निकलना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसमें पैसे अलॉट किए हैं कि उनको कुछ काम मिले गांव में ही। साथ में पीडीएस सिस्टम में उनको कैसे जोड़ा जाए कि उनको कम से कम वो सस्ते में जो अनाज है वो मिल जाए। साथ में उनका जो खुद का रिसिलियंस है, उनके अंदर बहुत स्ट्रेस है अभी कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ये उनके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ये है कि वो अपने सिचुएशन से ही एक तरह से अप्रूट हो गए। अगर कोई मुंबई में स्कूल में था, म्युनिसिपल स्कूल में, वो यहाँ से गांव चला गया, तो वहां के स्कूल में उसको एडमिशन मिलना चाहिए। स्कूल अभी चल नहीं रही है, तो बच्चों की पढ़ाई जो थी वहीं रुक गई। अभी आगे कैसे करेंगे वो देखना है। तीसरी समस्या है हमारे एडोसेंट गर्ल्स के साथ है गांव में, खास करके उनको सिक्योरिटी रीजंस बोल के और फाइनेंशियल बर्डन बोल के उनकी शादियां जल्दी करा दी जाती हैं। और इस कंडीशन में ये संभावना बन सकती है कि जो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर का जो प्रमाण है वो बढ़ने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। और कुछ कुछ कंडीशन में ट्रैफिकिंग भी बढ़ सकती है, क्योंकि डिस्ट्रेस कंडीशंस में पेरेंट खुद को भी नहीं संभाल पाते हैं, और उस कंडीशंस में अगर वहां पर स्टेप इन नहीं किया गया तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। हम लोगों ने इसको देखा है। तीसरा चीज हम लोगों ने देखा है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था छोटे बच्चों का 0 to 1 ईयर्स प्लस 1 to 5 ईयर्स का, वो हेवेयर हो गया है। वो जो टाइम पे होता था वो हो नहीं रहा, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है। उसका असर ये हो सकता है मालन्यूट्रिशन बढ़ सकती है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, आपके डिजीज फाइटिंग एबिलिटीज कम है, और आपका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। एडोसेंट गर्ल्स से लेकर के प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे, ये भी एक नई समस्या है। तो कोविड ने एक तरह से पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया है, और हमें अपने जिन चीजों को हम शायद फेस नहीं करना चाहते थे उसकी तरफ कलेक्टिव ध्यान आकर्षित किया है। कि देखिए, जब हमें काम की जरूरत होती है तो हमें हेल्प मिल जाता है शहर में, डोमेस्टिक हेल्प, हमें एक मिस्त्री मिल जाता है, हमें एक साइकिल का पंचर बनाने वाला मिल जाता है। उस समय हम उनके वो देखते हैं, हाँ ये तो नॉर्मल है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि ये वही लोग थे जो आज चले गए हैं। आएंगे कि नहीं, इसकी आएंगे जरूर, उनको भी खाना है, लेकिन कब आएंगे, कितने संख्या में आएंगे, क्या उनके लिए हम चिंतित हैं, ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि दिस इज हाउ इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर फेस। हम चाह के उससे भाग नहीं सकते थे, क्योंकि कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि इतने लोग हमें सर्व करते हैं, और आज वो रोड पे हैं। और मैं तो बहुत सारे केसेस आप देख सकेंगे कि वो स्कूटर चला के यहाँ से चले गए 2000 किलोमीटर। कोई ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी अपने यहाँ ऑटो थे, तो हजारों ऑटो रोड पे थी, इंदौर क्रॉस कर रहे थे। बहुत सारे लोग पैदल ही चले जा रहे थे, तो मदद की, खाना खिलाया, और बहुत ही हार्ट रेंचिंग सीन्स था। तो कोविड ने तो पूरी पलट के रख दी है, लेकिन हमें सोचने को भी मजबूर किया है कि हम कैसे इन चीजों को संभालने में हेल्प करें। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और सरकारी कोशिश के साथ हमें पब्लिक जब तक नहीं जुड़ेगी, और जहां जहां कोशिश होने के बावजूद सही से नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे हमें जा करके सरकारी अधिकारी को बोलना है कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ मिस हो रहा है। ये हमारा अधिकार भी है संविधान के तहत, और ये हमारी ड्यूटी भी है टुवर्ड्स आवर सिटीजन। तो हमें ये दोनों काम करने चाहिए। So it was a very moving talk, sir. बहुत सीखने को मिला. In fact, I'll tell you, before we end, I'll just tell you one story of one underprivileged कि सिर्फ खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है. This is an attitude problem also. ये actually she's a grandmother now, but उनके बचपन नहीं, सर उनकी जवानी की स्टोरी है. She had her child, वो अपने मायके गई थी, and on her when she was there, मायके में डिलीवरी के बाद वो रहते हैं 40 दिन 3 महीना depending. The son-in-law of the house passed away. तो उन्होंने और फिर से उसको गर्ल चाइल्ड हुई थी. ओके, शी हैड अ बेबी गर्ल. तो उन्होंने लगा दिया ये माँ और बेटी पनौती है, इसको वापस घर में लाना ही नहीं है. सो दैट वुमन हैड दिस पर्सनल स्ट्रगल, एंड थैंक गॉड उसका हस्बैंड लव्ड हर and he stood up for her. He said no, she is not responsible for him getting into an accident. वो घर में आएगी और वो घर में रहेगी.
and it was a joint family. He stood up for her, और ये हमको कम देखने को मिलता है. It's like, वो भी आप देखेंगे सपोज लाइक 70s एंड 80s के जमाने में ये अगर दुर्घटना घटी है तो किसको ब्लेम करेंगे? घर में आई नई बच्ची को, घर में आई बहू को, इनको ब्लेम किया जाता है. इट इज अ वेरी सैड रियलिटी एंड द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा शी वेंट थ्रू just with a 2-month-old baby, it is very heart-wrenching. I personally know that person when she has told me this story, and so you'll read about her also in the book, and how it is so easy to blame the mother for the any misery in the house. In fact, मतलब अगर आपका सिजेरियन भी हो जाए for whatever medical reason, आप जिंदा बचे हैं, औरत को ही ब्लेम किया जाता है. That is the harsh reality that we live in. आप रूरल में रहो, आप अर्बन में रहो, कहीं पर भी रहो, it is the harsh reality a woman has to deal with कि blame अगर होगा इस दुनिया में तो औरत को mainly होगा. और सिल्वर लाइनिंग है, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी समस्या है, लेकिन हम लोगों ने देखा है अपने फील्ड में कि महिलाओं ने कलेक्टिवली फाइट बैक किया है. उन्होंने हमारे फील्ड एरियाज में इंश्योर किया है कि वो नहीं पढ़ पाए तो उनकी बच्चियां पढ़े. और अभी रिजल्ट निकला था बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, और वो सिंगल महिला थी, गांव में थी, उसको हम लोगों ने हमारे अपने प्रोजेक्ट में जोड़ा था. उसके बच्चे को इंश्योर कराया कि वो स्कूल पढ़े, और वो 10वीं में 87% लेके आई थी, और वो शायद पहली लड़की थी जो कि 87% लेके आई थी. तो बहुत माओ ने संघर्ष किया है, माओ ने महिलाओं ने गांव में अपने आप को संभाला भी है, और दूसरे के लिए वो एक तरह से प्रेरणा स्रोत भी बने हैं. सर, आपने जो प्रेरणा के बारे में कहा है, I'll tell you a little more about this woman. That woman, humble education है उसका, basic education है, and but she has raised her children to become wonderful people. And in fact, her daughter-in-law, she has supported to write this book. Arey, great. That's my mother-in-law. Oh, good. So she is the one who never questioned me. मैं अपने ऑफिस में जाके, स्टडी में रूम में जाके मैं लिखती थी. मेरी बच्ची 4 महीने की थी, she would take care of her. मैंने दूध पिला दिया, नहला दिया, I'm done. She would play with the kid. Not once would she come and ask me, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है. So that woman who has undergone so much of trauma, with a wonderful husband who supported her, but she made sure that her daughter-in-law gets all the support when she wants to write a book, conquering all these mindsets. बदलाव हो रहा है, होगा, हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. शायद और भी बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ. We are hoping this book contributes to some way, in some way or the other. सिर्फ जो है क्राई और बेबी चक्रा आपके साथ, या हम लोग इसको बहुत इनकरेज करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ. और क्राई का नाम अगर देखेंगे तो चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जुड़ते रहें एक दूसरे के. So it was so wonderful talking to you. बहुत अच्छा लगा. दिस टॉपिक जो आपके साथ था, दिस वाज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, बिकॉज आप जब मुझे अंडर प्रिविलेज की स्टोरीज बता रहे थे, आई कुड रिमेंबर the things my mother-in-law, my mother, and these people have been through, and how they have championed me to be able to voice out other women जिनको दुनिया जहाँ के प्रॉब्लम्स होते हैं, या जस्ट नॉट अंडर प्रिविलेज, द प्रिविलेज पीपल हु आर आल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. एंड अगर आप ये हमारी बात सुन के आपको कुछ अच्छा लगा है, in my entire breastfeeding chapter is devoted to this family dynamic, not the entire, but there's a big chunk devoted to this family dynamic. अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है इसके वजह से, प्लीज रीड दिस बुक. अगर आपका बच्चा 5-6 साल का है, 10 साल का है, 18 साल का है, और आपको यू रिलेट टू एनी ऑफ द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट, एनीथिंग, आपको क्लोजर मिलेगा. क्लोजर जो है, जो आपके अंदर जो अनफिनिश्ड बिजनेस है कि मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार होता है, कि मुझे ऐसा कहा गया था, मुझे अंडर एस्टिमेट किया गया था, मुझे ताने मारे गए थे, you will find some story or the other that you will connect with. This book is by the people and for the women of India. Thank you so much for joining us, sir. I'm really looking forward to the feedback you give of the book. It will be my honor if you would give me a feedback. He has started reading this book. I'm so happy he accepted. I have started reading it. I have not read it completely. I am in the initial stages right now, but I will complete it and definitely get back to you. And maybe we will work together on something else which is much more informative. Yes, sir. Definitely. We are planning a video on raising awareness about breastfeeding along with Cry and Baby Chakra. We're getting together, and we have a special program planned where we are supporting lactation mothers, and proceeds go to Cry. We will get back to you, our audience. We will keep you updated. And it was so wonderful having you, sir. This is one of my most heartfelt conversations on the BIB Summit, I tell you. Nice to talk to you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. God bless you all. This is the end of our BIB Summit. We'll catch you on Tuesday again with our webinars. Back to work. Bye, everyone.